Dear students, today I am going to discuss about a new chapter, Nationalism in India. And this is one of the important chapter of history, which is several questions are asked in CBSE from this chapter. So first of all, I would like to discuss about the questions which are written here in notes, and this will be helpful for you in the exams, and I will explain you क्वेश्चन वाइज इन शॉर्ट ताकि आपको आसानी से समझ में आए. सबसे पहले सत्याग्रह है ना. तो दिस सत्याग्रह वाज अ पॉलिसी विच वाज अडॉप्टेड बाय महात्मा गांधी in South Africa and which he implemented in India also. And this satyagraha, you know, that was based on what? Truth and non-violence. And you will find next Mahatma Gandhi returned in India, which year, you know, in 1915, and then he adopted this satyagraha movement in India also. And this idea of satyagraha, you know, that was based on truth and non-violence. It was based on what? Truth and non-violence. And this was the instrument, Gandhiji told that, through which we can stand ourselves against the European powers. यानी अंग्रेजों के खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं. और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गांधी जी ने ये सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो भारत में सबसे पहले चंपारण में अपनाया था, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी अडॉप्टेड दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह एट चंपारण, एंड वेयर you know that indigo planters were exploiting the Indian peasants, and they were against the British government, British planters. तो वहाँ पे चंपारण में ब्रिटिश प्लांटर्स जो है अंग्रेजों के खिलाफ थे. वो नहीं, मतलब वहाँ के किसान जो है अंग्रेजों के खिलाफ थे. वो नहीं चाहते थे नील की खेती करने, जिसको इंडिगो कहते हैं. लेकिन गांधी जी जब वहाँ गए, वहाँ राजकुमार शुक्ला नाम के किसान नेता ने गांधी जी को इनवाइट किया कि आप आइए और यहाँ की समस्या का समाधान कीजिए. तो फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी वेंट देयर एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, एंड दैट लोकल गवर्नमेंट मेड वन कमिटी in which Mahatma Gandhi also became the member of the committee, one of the member of the committee, and this way find out the solution. And this way Mahatma Gandhi was successful at Champaran. The first satyagraha in 1917, which took place at Champaran in Bihar, was successful. तो गांधी जी यहाँ सफल हो गए थे. चंपारण सत्याग्रह 1917 में 1917 में हुआ था. दूसरा गांधी जी गए खेड़ा सत्याग्रह में. वहाँ भी किसानों पर काफ़ी जो है सरकार ने उन पर लाद दिया था रेंट, है ना. तो लैंड टैक्स जो है बहुत बढ़ा दिया था. तो गांधी जी अपोज्ड, है ना. एंड ड्यू टू गांधी जी सत्याग्रह यू विल फाइंड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट दे आर एक्सेप्टेड दोज हु आर केपेबल, ओनली सच पीपल विल गिव दिस टैक्स. अदर he reduces that taxes there. And this way Mahatma Gandhi was successful there. Then Mahatma Gandhi went to Ahmedabad, where cotton mill workers led movement against the British mill owners. And Mahatma Gandhi went there, and first time Mahatma Gandhi went on hunger strike there. And there also, whatever demands the workers were having were accepted, and working hour was reduced, regular payments were done, and they assured that now they will not be exploited. And this way Mahatma Gandhi was successful at Ahmedabad. So this way we find three experiments with satyagraha was successful. यानी तीनों जो सत्याग्रह आंदोलन था, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल वर्कर्स की समस्या, ये तीनों सफल रही. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रॉलेट एक्ट. तो रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में लाया गया था, 1919 में, भारतीय क्रांतिकारियों के अंदर एक डर पैदा करने के लिए, है ना, टू क्रिएट टेरर अमंग द इंडियन रेवोल्यूशनरीज. तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर सिडनी रॉलेट. दैट्स व्हाई इट केम टू बी नोन एज रॉलेट एक्ट. एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट यू विल फाइंड दैट एनीवन कैन बी अरेस्टेड एट एनी प्लेस, विदाउट any reason, on the basis of suspicion only,
for 2 years and there will be no trial, है ना। तो इस तरह से ये किसी को भी किया जा सकता है और ये कारण था क्रांतिकारियों के बीच डर पैदा करने के लिए। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट उस पर डिस्कस करेंगे, वो है जालियांवाला बाग जो 1919 में हुआ था एट जालियांवाला बाग इन अमृतसर इन पंजाब। तो दिस वे you will find that here on the day Baisakhi, 13th April 1919, you will find that at Jallianwala Bagh so many people were assembled there because that day was Baisakhi and martial law was imposed there. So they were innocent people, they were not aware about that, what will happen in few hours. But they were assembled there discussing about different problems, and especially two leaders, Congress leader Dr. Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal were arrested. So how, according to Rowlatt Act, so how they should be released, for this they were discussing. All of a sudden you will find this General Dyer along with his troop came there and blocked this narrow passage which was reaching to Jallianwala Bagh and started firing on the innocent people, and more than 1000 people died in this. तो ये जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई, ये पूरे भारतीय इतिहास में, एक आधुनिक भारत के इतिहास में एक जघन्य अपराध माना जाता है, इसे अंग्रेजों ने किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस पर भी शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है सीबीएसई में, इसे जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। ये शुरू का क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में ही पूछा जाता है कि जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो भारत पर उसका क्या असर पड़ा। तो वी फाइंड दैट देयर वाज इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया, वी फाइंड, है ना। तो भारत पर भी जो है, भारत के पैसे से ही अंग्रेज युद्ध लड़ रहे थे, तो यहाँ उन्होंने टैक्सेस को बढ़ा दिया भारतीयों पर, भारतीय किसानों पर जो है भू लगान, भू कर जो है बढ़ा दिया गया, है ना। और चीज़ें यहाँ महंगी हो गई, प्राइसेस स्टार्टेड टू राइज इन इंडिया एंड हेवी टैक्सेस वेर इम्पोज्ड ऑन इंडियंस and peasants were unable to pay such taxes to the Britishers, and you will find peasants were affected brutally due to high taxes, and that led to create the situation of drought also, epidemic also, thousands of people died. So this way, if you will find economically and socially, the condition was worsened during the First World War. अब हम लोग देखते हैं खिलाफत मूवमेंट, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है इस नोट्स के हिसाब से, द खिलाफत मूवमेंट, यू नो दैट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दिस ब्रिटिशर्स ऑक्युपाइड टर्की बिकॉज टर्की वॉज द हेड ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड टर्कीज हेड वॉज खलीफा, एंड खलीफा वॉज, यू नो दैट, वॉज dethroned by the Britishers, and Khalifa was the head of the Muslim world. So Indian Muslims were also, you know, that affected. They, in reaction, started Khilafat movement in India against the British government under the leadership of Ali brothers, you know, Muhammad Ali and Shaukat Ali. And Gandhiji also supported this movement. Okay. Why? Because Gandhiji was thinking that in future I would like to start a mass movement. So if now I will support the Muslims, so definitely in future they will also support me. So that was the objective, है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि विच फेमस बुक वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, है ना, हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अंग्रेज भारत में भारतीयों के सहयोग से आए थे, तो अगर हम लोग असहयोग करते हैं तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। तो ये किताब 1909 में साउथ अफ्रीका में उन्होंने लिखी थी। तो हियर ऑल्सो यू विल फाइंड दैट कि गांधी जी, यू नो दैट, लेट टू क्लियरली रिटन अबाउट that if Indians will not support the Britishers, so definitely they have to quit from India. So this way we find Gandhi ji was, you know that, awakened Indians through his writings. Okay.
नेक्स्ट, वाई खिलाफत मूवमेंट वॉज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी. तो जस्ट नो आई टोल्ड यू कि गांधी जी wanted to launch a mass movement in future, and he found that कि now the Indian Muslims are against the Britishers. If I would support the Muslims now, then in future I will get the support. So that's why Mahatma Gandhi supported the खिलाफत movement. तो गांधी जी का उद्देश्य यही था कि अभी चूंकि उन्होंने देखा कि मुस्लिम अंग्रेजों के खिलाफ हो गए हैं, तो अगर इन लोगों का अभी समर्थन करते हैं तो भविष्य में अंग्रेजों के खिलाफ अगर मैं कोई जन आंदोलन चलाऊंगा, मास मूवमेंट चलाऊंगा, तो अंग्रेजी मुसलमानों का साथ मुझे मिलेगा, है ना. तो इस तरह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को चलाया. अब देखते हैं कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, है ना, इन इंडिया ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो नॉन कॉपरेशन महात्मा गांधी ने 1920 में चलाया था, और खिलाफत मूवमेंट से जुड़ने के बाद ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट हो गया जनवरी 1921 में. तो इसी में दौरान गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो शुरू किया, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि इस मूवमेंट को शुरू करने के पहले कुछ प्रपोजल्स गांधी जी ने रखा कि भाई उन लोगों को किस तरह से सहयोग करना है. सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई जो वस्त्र हम लोग यूज़ करते हैं अंग्रेजों का, उसका बहिष्कार करना है, सूती वस्त्र को अपनाना है ना. तो वट एवर क्लोथ्स वी आर यूजिंग ऑफ इंडियन क्लोथ्स वी हैव टू यूज इन द प्लेस ऑफ ब्रिटिश क्लोथ. तो ही अवेकेंड द पीपल टू वेयर कॉटन क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ फॉरेन क्लोथ्स. एंड ही ऑल्सो आस्क्ड द ब्रिटिश all the Indians, those who are working in British administration and British Army and British police, to resign from their post. He also asked the Indian students and teachers to quit from the British schools and colleges. He also asked the lawyers not to practice in British school. So this way he told that, and all those titles which were given by Britishers should be returned back to this Britishers. So this way, if we will not cooperate the Britishers, so definitely they will quit from India. तो ये उद्देश्य था गांधी जी का, किसी भी रूप में अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, और जिससे कि वो भारत छोड़ने पर मजबूर हो जाए. तो इस तरह से हम देखते हैं इस क्वेश्चन में. और फिर देखते हैं कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों में स्लो क्यों हो गया. क्योंकि गांधी जी ने जिस उद्देश्य से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि कोई नेशनल स्कूल नहीं खोला गया, कॉलेज नहीं खोला गया, कोई नेशनल कोर्ट नहीं खोला गया. तो शिक्षकों को, स्टूडेंट्स को लगा कि आखिर पढ़ाई कब तक मेरी बंद रहेगी, है ना. लॉयर्स को भी लगा कब तक हम जो है कोर्ट नहीं जाएंगे, तो आय का साधन नहीं था. और सूती कपड़े जो है काफ़ी महंगे थे विदेशी कपड़ों की तुलना में. तो इसलिए लोगों को लगा कि अब ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं चल सकता है, तो वो वापस जो है सूती कपड़े को छोड़कर फॉरेन क्लोथ, चूँकि वो सस्ते होते थे, तो पहनने लगे. और जो नेशनल स्कूल कॉलेज ना बनने के कारण तो वापस छात्र जो है, शिक्षक जो है, वो स्कूल कॉलेज लौटने लगे. तो दिस वे वी फाइंड दैट दे वर नॉट हैविंग एनी ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग बैक टू देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड टू वेयर फॉरेन क्लोथ्स और टू जॉइन द government services. So this way these movement became slowed down in the cities and towns. अब देखते हैं बाबा रामचंद्र कौन थे. तो बाबा रामचंद्र जो है एक किसान नेता थे अवध के, जो फिजी में इंडेंचर्ड लेबर के रूप में काम कर चुके थे. और वो वापस जब इंडिया आए तो देखे कि अवध में किसानों की समस्या है ना. तो उसके वो किसानों के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ और बड़े किसानों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए और नेता बन गया. तो ही वर्कड एज एन इंडेंचर्ड लेबर इन फिजी, एंड व्हेन ही रिटर्न बैक टू इंडिया, तो ही स्टार्टेड टू लेड मूवमेंट इन अवध अगेंस्ट द तालुकदार्स. तालुकदार्स वहाँ के बड़े किसान होते थे, उनके खिलाफ, है ना. तो इस तरह से हम देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी जो है, अभी मैंने बताया था जिस तरह से कि वो काफ़ी जगहों पर जो है वो फैला, किसानों के बीच भी फैला. अवध में भी आया ये मूवमेंट, जहाँ की अवध में जो
पीजेंट मूवमेंट था वो इससे जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो समस्या यह थी कि यहाँ पे जिस तरह से मूवमेंट चल रहा था तो वो थोड़ा हिंसात्मक रूप में भी था। तो गांधी जी नहीं चाहते थे, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अवध का जो मूवमेंट है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़े, तो इसलिए वो इसका समर्थन नहीं कर रहे थे, है ना। और अवध में किसानों की अपनी छोटे दो तरह के किसान थे, छोटे किसान, बड़े किसान। तो छोटे किसान को अगर शामिल करते तो बड़े किसान हट जाते, और बड़े किसान को शामिल करते तो छोटे किसान हट जाते। तो इसलिए जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अवध के किसान आंदोलन को शामिल नहीं किया गया। अब देखिए कि दैट what problems were faced by people of Awadh. So you will find that the different problems, the peasants were overburdened with high taxes, high rents. So that was also one of the problems. And there was forced labor system, means to adopt what Begar system. That was also one of the reason. And tenants had to tenure was not led to have clear years fixation, and regularly that they have to pay the taxes and prevent from their acquiring any right also. So that led to create problem, all these, to the small peasants. So that's why they stood against the तालुकदार्स, है ना। तो इसलिए ये लोग किसान की जो अपनी समस्या थी, बिगाड़ी प्रथा, हाई टैक्स रेंट, तो ये सारी समस्याओं के कारण वो तालुकदार्स के खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट वेयर डिमांडेड बाय पीजेंट मूवमेंट इन अवध। तो 3 चीज़ उनसे मांग थी पीजेंट्स की। वो 3 चीज़ में था रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एवोल्यूशन ऑफ बेगार, सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो उग्र लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ आंदोलन। नाई धोबी बंद आंदोलन भी उन्होंने चलाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं नाई धोबी बंद कि वो लोग बॉयकॉट किया नाई धोबी बंद का आंदोलन का, है ना, क्योंकि वो लोग बड़े एक्सप्लॉइट किए जाते थे। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं हु फॉर्म द अवध किसान सभा। तो इसका स्थापना जो है जवाहरलाल नेहरू ने किसान नेता बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर के किए, और इसके ब्रांचेस जो है 400 जिलों में खोला गया, गांवों में वहाँ। एंड हाउ वाज द मूवमेंट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स लेड बाय बाबा रामचंद्र। तो ये कि पंचायत स्तर पे ऑर्गेनाइज्ड किया गया, किसानों को तैयार किया गया, और जो उनकी समस्या थी वो तालुकदार के खिलाफ उन्होंने किया। और दूसरे स्तर पे उन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया, है ना, और सोशल बॉयकॉट किया जमींदारों के खिलाफ, है ना। और कई जगह पर तो उन्होंने अटैक भी कर दिया, जो उनके गोडाउन्स थे उन पर हमला कर दिया गया और उसके लूट लिया गया। तो दीज वेर द वेज थ्रू विच यू विल फाइंड दैट दिस बाबा रामचंद्र led the movement against the talukdars in Awadh. First, as I told you, by their problems which they were facing, then formation of Awadh Kisan Sabha by attacking on talukdars. So these were the methods. अब अल्लूरी सीताराम राजू। तो अल्लूरी सीताराम राजू कौन था, है ना। तो अल्लूरी सीताराम राजू was a tribal leader who led guerrilla movement, against the Britishers, is it clear, in Gudem Hills of Andhra Pradesh. गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में उन्होंने गुरिल्ला आंदोलन छेड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि ये लोग बड़े शांति पसंद लोग थे, है ना। और ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई उनके क्षेत्र में दखल अंदाजी करे। तो था क्या कि वहां पे अंग्रेज जो है रेलवे लाइन बना रहे थे, सड़क बना रहे थे जंगल में, और इन्हीं लोगों से बाय फोर्सली काम करा रहे थे। तो जिसके वजह से ये खिलाफ हो गए। और इनके नेता थे
Alluri Sitaram Raju. And Alluri Sitaram Raju, you know that, led guerrilla movement against the Britishers because of their attitude. और ये गांधी जी के बड़े भक्त थे, है ना। ये आर्म्ड रेवेलियन शुरू किए, यानी सशस्त्र विद्रोह शुरू किया उन्होंने, और गांधी जी के बड़े भक्त थे। गांधी जी के जो मतलब सत्य बात थी, ट्रुथ था, उनको फॉलो करते थे, लेकिन अहिंसा को फॉलो नहीं करते थे। गांधी जी के खादी कपड़ों का वो समर्थन करते थे, नॉट टू ड्रिंक लीकर, यू नो, फॉर दिस ऑल्सो ही वॉज सपोर्टिंग महात्मा गांधी, है ना। लेकिन गांधी जी और इनमें थोड़ा सा अंतर था कि ये अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ थे, और गांधी जी हिंसात्मक तरीके से ये खिलाफ थे, और गांधी जी हिंसात्मक तरीके से। तो इस तरह से ये, लेकिन इनके आंदोलन ने वहाँ काफ़ी परिवर्तन लाया, और ये अपने आप को कहते थे कि आई कैन सर्वाइव बुलेट, यू नो, आई एम इनकारनेशन ऑफ गॉड, मतलब हम ईश्वर के अवतार हैं, और इस तरह से लोग इनमें विश्वास भी करते थे। लेकिन अंततः अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और इनको फांसी की सजा दी, और इस तरह से ये वहाँ के लोक नायक हो गए, फोक हीरो। अब तो इनका जो है आंदोलन इस तरह से वहाँ पर समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है, जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप लिख लीजिए, इसको बहुत काम आएगा। और नेक्स्ट है ये फ्रीडम इन प्लांटेशन एरिया। तो प्लांटेशन एरिया असम और उधर जो पहाड़ी इलाका था उसमें चल रहा था, और वहाँ था कि एक इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट पास किया गया था 1859 में, जिसके अनुसार कोई भी मजदूर जो है वो प्लान नहीं कर सकता है बिना पूछे हुए। लेकिन कब शायद ही कभी इस तरह के एक्ट का पालन हुआ, नो, हार्डली दे वर गिवन एनी चांस टू माइग्रेट इज अ केयर। But during the non-cooperation movement, they heard about Mahatma Gandhi. That this Mahatma Gandhi is bringing Ram Raj, you know, Gandhi Yug will come, and they will be provided land in their native place. So one day they decided to fled away from there, from the plantation area, and they fled also. But unfortunately, that day we find every steamer and railways were on strike, and again they were caught and sent to the plantation field. तो इस तरह से इन लोगों का जो प्लांटेशन क्षेत्र में भी स्वराज की जो योजना बनी थी और शुरू हुई थी वो समाप्त हो गया इस तरह से। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे स्वराज पार्टी, जो आगे हम देखेंगे। तो स्वराज पार्टी में हम लोग देखेंगे इसकी स्थापना पार्टी के अंदर ही जो है मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने किया था, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही। ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी, लेकिन शॉर्ट में उसको स्वराज पार्टी कहते हैं। और इस आंदोलन को उन्होंने शुरू किया था। इसका उद्देश्य था कि काउंसिल का इलेक्शन लड़के अंग्रेजों को काउंसिल के अंदर ही, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ही उनसे जवाब तलब किया जाए, उनका विरोध किया जाए। सड़क पे ये आंदोलन नहीं करना चाहते थे गांधी जी की तरह, इसीलिए जो है ये वो किए, काउंसिल इलेक्शन लड़े, जबकि कांग्रेस नहीं चाहती थी। लेकिन विद इन द कांग्रेस दे fought election and won the majority seats and went to the council to oppose the Britishers. उसके बाद देखते हैं सर जॉन साइमन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1919 में। तो सर जॉन साइमन आए थे, उनके नेतृत्व में साइमन कमीशन भेजा गया था रिव्यू के लिए कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है। तो यहाँ जब आए तो उसमें ज़्यादातर मेंबर्स तो अंग्रेज ही थे जो मेंबर्स थे, तो इसलिए भारतीयों ने उसका विरोध किया और कहा कि गो बैक साइमन, है ना, तो साइमन वापस जाओ। तो इस तरह से साइमन को इन्होंने जहाँ भी गए वो हरी झंडी, मतलब काला झंडा दिखाया गया कि गो बैक साइमन, क्योंकि उसमें भारतीयों की समस्याओं का समाधान नहीं था। तो इस तरह से जो है साइमन जो है वापस चला गया। उसके बाद लाहौर कांग्रेस सेशन जो है हम लोग देखेंगे कि लाहौर कांग्रेस सेशन में क्या हुआ कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस का एक सेशन हुआ लाहौर में, है ना। हर साल होता था, दिसंबर महीने शुरू होता था और नेक्स्ट ईयर तक चलता था। तो 1929 दिसंबर इट वाज स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड टू अप टू नेक्स्ट ईयर 1930 नवंबर।
So here only we find it was presided over by Jawaharlal Nehru, and here Jawaharlal Nehru, you know that demanded full independence, complete independence, and tricolored flag was unfurled on the bank of river Ravi, and that day, 26 January 1930, India was declared as independent nation by Jawaharlal Nehru. तो इस तरह से देखते हैं ये महत्व था लाहौर कांग्रेस सेशन का, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड पार्ट में बाकी का नोट्स और एक्सप्लेनेशन के साथ आप दीजिएगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए तो तुरंत आपको दूसरा वीडियो इसका आधा एक्सप्लेनेशन उसमें मिल जाएगा। थैंक यू।